everyone, and welcome to the new episode of India IT 360 Strategic Voices. I am Divya Giri, your host and executive editor at India IT 360. Today, we have the privilege of having a conversation with the founder and managing director of Spark Technologies Private Limited, Mr. Sehwag Nautiyal. Thank you so much, sir, for joining us today. And how are you? Thank you. I'm good, perfectly good. Divya, good to see you. Yeah, And thanks for the this invitations. yeah. Sir, before we start, it would be great if you could share some insights about your professional journey. Okay, I had passed my engineering in electronics and communication in 1992, and I worked for 1 year in some company. After that, in 1993, we started this business. After 1 year, 1994, this company became a private limited company. We treat ourselves foundation from the 1994 onward, not from 1993, and we already completed 30 years. And my friend Rajesh Budwar, who is the partner in my business, the another director, we both was classmate in engineering college. And then 1993 we started the business. 1994 this company became private limited and continuously growing. We started company with a very small amount of just 80,000 rupees. And currently, last year we closed around our revenue 232 crores, and in first 6 months we closed our revenue around 150 crore plus. Already providing the employment more than 100 plus people, and trying good what best we can do for the community and people working in our company. Great, great, great. Thank you. So, sir, and with over 30 years in the industry, how have you seen the distribution industry evolve? Okay, we have seen the earlier. This was controlled by the very limited people and most of the cash rich people. Lot of challenges earlier. Major was the capital was the biggest problem, and products availability was again an issue earlier. But fortunately, today's scenario, India एक नए लेवल पे चला गया है और आज बिजनेसेस में उस तरह की चैलेंजेस नहीं है जिस तरह की चैलेंजेस पहले होती थी. तो डिस्ट्रीब्यूशन मूविंग गुड एंड आई एम श्योर बिकॉज एज इंडियन इकोनॉमी की जब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था 1994 में, इंडियन इकोनॉमी वो जस्ट $400 million, एंड $400 million से आज इंडस्ट्री जो है वो $4 ट्रिलियन की हो गई है. इट मीन्स 1,000 फोल्ड ऑलरेडी. 1,000 फोल्ड इज अ बिग चेंज विच वी हैव सीन इन आवर लाइफ टाइम. तो ये बहुत चेंजेस है इंडस्ट्री के अंदर इन लास्ट 30 इयर्स में. गुड्स अवेलेबिलिटी, पहले जो सेक्टर था अनऑर्गेनाइज था, आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर चीज ऑर्गेनाइज हो गई है. दूसरा, कंपनी के बारे में आपने जानना था, अंडरस्टैंड करना था, उसके लिए आपके पास विजिबिलिटी अवेलेबल नहीं थी. टुडे ड्यू टू द बेनिफिट ऑफ द टेक्नोलॉजी, मुझे किसी कंपनी के बारे में कोई डिटेल पता करनी हो, चाहे वो मेरा सप्लायर है चाहे मेरा कस्टमर है, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल. That's my understanding, and it was a great time of 30 years. And our aim and philosophy will always remain what good we can do for the people who are working with us. And one advantage as a Spark we have, the person who joined us 31 years ago, he is still working with the company. Person who joined us 30 years ago is still working with the company. Who joined 28 years, 29 years ago is still working with the company. And more than majority of the people, more than 80% people in company, either it is their first job or his second job. Okay, so we are able to retain the people, and people work. We are able to develop the culture inside company in last 30 years. कि जो भी लोग काम कर रहे हैं वो अपना काम समझ से करते हैं, और हमारी यही हमारी जो है एसेट्स है, और यही हमारी जीत है लास्ट 30 ईयर की, जो शायद दूसरे लोग नहीं कर पाए. दैट इज द एडवांटेज इन स्पार्क टेक्नोलॉजी. Great. So, how do you think smart technologies reshape the IT distribution landscape, and what opportunities do you present for channel partners? ओके, स्मार्ट टेक्नोलॉजी में क्या है कि जो भी टेक्नोलॉजी में चेंज आए हैं, प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, क्लाउड बेस आ रहा है, एडवांस एआई आ रहा है, सारी जो चीजें हैं वो इंटीग्रेट हो रही हैं. तो जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को इसके साथ अलाइन नहीं करेगी, वो खत्म हो जाएंगे. हम उस इंडस्ट्री से आए हैं कि जिस इंडस्ट्री में पहले कैश पे काम चलता था, लोग कंप्यूटराइजेशन के मूड में नहीं थे.
लेकिन जो लोग कंप्यूटराइजेशन के मूड में नहीं थे, दे आर फिनिश्ड, दे आर नो मोर एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री। जब जीएसटी आया तो लोगों ने जितने उसकी हैवी कंप्लायंसेस का इशू था, लोग उस कंप्लायंसेस के लिए तैयार नहीं थे, वो लोग भी खत्म हो गए। सिमिलरली टुडे सिनारियो, जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है, एवरीथिंग गेटिंग स्मार्ट, आइदर योर टीवी गेटिंग स्मार्ट, योर ऑफिस गेटिंग स्मार्ट, एडवांस एआई इज कमिंग ओवर द ईयर। तो सेम एवरीथिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी सेम प्रोसेस चल रहा है। जो लोग उसको अपने सिस्टम में, अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, दे विल नॉट एग्जिस्ट एज ए कंपनी। मेरा मानना है कि आपको मजबूरी है। आप नहीं कह सकते आज के डेट में कि नहीं जी मैं तो बैलगाड़ी में चलूंगी। अगर आज के डेट में कार चाहिए या बाइक चाहिए, या दूसरा है कि अगर मुझे आज से यहाँ से मुंबई जाना था, आपको बाइक एयर ही जाना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते कि मैं तो क्या कहते हैं, पास जमाने की तरह जो है घोड़ा गाड़ी लेके या ट्रेन से जो है 3 दिन में मुंबई पहुंचूंगी। तो सेम थिंग व्हाट हैपन इन द इंडस्ट्री की जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी आई है, वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट टेक्नोलॉजी। चाहे वो किसी भी लेवल की स्मार्टनेस है, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग है, चाहे वो किसी और तरह की टेक्नोलॉजी है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी से हम दूर नहीं जा सकते हैं। this will be remain over there, and we all need to put ourselves into that domain कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी को अपने सिस्टम में, आइदर इट एआई और एनीथिंग एल्स, उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके साथ ही जीना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि हम इसके बिना जी सकते हैं। एंड जो लोग नहीं जिएंगे उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, देयर बिजनेस विल बी वाइप आउट। आइदर इट इज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो सिस्टम इंटीग्रेशन हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। आज आप ये नहीं कह सकते मेरे पास फोन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। आप कह नहीं सकते कि मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है। देयर वॉज अ टाइम लोग कहते थे कि आपका मेल ईमेल आईडी होना मैंडेटरी है बिजनेस करने के लिए। हम कहते नहीं नहीं, हम हमारे पास नहीं ईमेल आईडी। लेकिन नो, यू टुडे यू कैन नॉट सी। तो स्मार्टनेस ऑल द एरिया, आइदर इन डिस्ट्रीब्यूशन और एवरीवेयर, which has to be implemented। और जितने चैनल पार्टनर हैं उनको भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी अपने, आइदर उनके पास जो भी एडवांस सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, तभी उनकी ग्रोथ पॉसिबल है। अदरवाइज दे विल नॉट एबल टू ग्रो इन फ्यूचर, एंड दे कैन नॉट स्केल अप देयर बिजनेस नेक्स्ट लेवल। एंड बिजनेस में जो भी बिजनेस स्केल अप नहीं हो पाएगा टुडे और टुमारो, दैट बिजनेस गोइंग टू डाई। True, जी। definitely. So how has the workforce changed from before to today, Gen Zs? जेनजी में चेंज किया है कि आपको ना, टुडे सिनारियो जेनजी के साथ आपको एक नए टाइप के चैलेंजेस हैं। ठीक है, नए टाइप के चैलेंजेस जेनजी के साथ किया कि जेनजी जैसे सिस्टम पे आया, वो इतने कस्टमर को फेस करने के लिए फ्रेंडली तैयार नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम उन्होंने वर्क फ्रॉम होम आया, जब वो जेनजी एक सिस्टम में रेडी हुआ, उनके साथ एक डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस हैं। उनको आपको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, आपको उनकी जो मेजरमेंट है जेनजी के साथ, वो वर्क से, आउटपुट से करनी पड़ेगी। उसके लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए। आप उनको फ्री देनी पड़ेगी कि भैया 3 डे तो वर्क फ्रॉम होम कर ले, 3 डे वर्क फ्रॉम ऑफिस कर ले, चलेगा। बट अगर आप उनको फैसिलिटी नहीं दोगे कि नहीं नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, आपको वो इन्वायरमेंट आपको देना पड़ेगा जेनजी के लिए। ये हमारे टाइम की तरह नहीं, पास्ट में कि जी एसी नहीं तो चलेगा। आप आपको एयर कंडीशन देना पड़ेगा, उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, तभी जेनजी आपके साथ काम करेगा। और जेनजी को आप जो मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसको आपको टास्क ओरिएंटेड करना पड़ेगा, एंड प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड करना पड़ेगा, ना कि उस हिसाब से करना पड़ेगा जैसे कि 8 घंटे आप ऑफिस में आके बैठना ही है तो बैठना ही पड़ेगा। उस तरीके की सिस्टम उनके साथ नहीं चलेगा। दैट चेंज रिक्वायर्ड माइंड से हमें एज ए, हम जो प्रोमोटर हैं, जो एक लास्ट जनरेशन के हैं, तो हमें भी अपने माइंड को चेंज करना है, अपनी फिलोसफी को चेंज करना है कि अगर जेन जी को हमने अपने साथ इंटीग्रेट करना है, उनके साथ आगे जाना है, बिजनेस को बड़ा करना है, तो हमें सबसे पहले अपने ब्रेन की, अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा कि हाउ द करंट वे इज मूविंग। एंड नंबर 2, वी नीड टू मूव फ्रॉम टाइम सेंट्रिक से मूव कर प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक और प्रॉफिट सेंट्रिक कंपनी बनना पड़ेगा, अगर आपने जेन जी को अपने साथ इनकॉर्पोरेट करना है। Yeah, that's really well defined. So, what significant challenges are currently faced by the IT distribution sector, and how can companies effectively address them? अभी आईटी डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रैंकली स्पीकिंग चैलेंजेस इज ऑलवेज द डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस आपको मिलेंगे। कभी आपको मैन पावर का चैलेंज चलेगा, कभी आपका कैपिटल का चैलेंज चलेगा, कभी आपके प्रोडक्ट का चैलेंज था। अगर हम कोविड पीरियड की बात करें तो 2-3 साल जो है प्रोडक्ट का चैलेंज था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फैक्ट्री इन चाइना, इंडिया, ऑल प्लेसेस बंद हो गई थी। तो कई सारे प्लांट ग्लोबली ऐसे हैं कि एक बार अगर शट डाउन हो गए तो कई कई महीनों को दोबारा अप नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो सप्लाई वॉज इश्यू अर्लियर, कभी मैन पावर इशू थी, कभी कैपिटल इशू था,
कभी सबसे बड़ा जो चैलेंज था मार्केट में, आप सामान दे दीजिए, तो प्रॉब्लम व्हाट हैपनिंग कि जिन लोगों के पास बिजनेस है, दे आर नॉट अ गुड पे मास्टर. दैट इज द ओनली ग्रेट चैलेंज. देयर आर आई सो मेनी पीपल कम टू अस, उनके पास पीओ छपे हुए हैं, ठीक है, पीओ छपे हुए हैं, लेकिन उनके बैलेंस शीट देखो तो उनका पेइंग साइकिल, उनका सिस्टम उतना करेक्ट नहीं जो होना चाहिए, ठीक है, उनकी कैपिटल बेस उतनी परफेक्ट नहीं है. तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो चैलेंज सबसे बड़ा आज, व्हाट वी फील एज ए वैल्यूड डिस्ट्रीब्यूटर, या जो हम मिड साइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या यू कैन से इमर्जिंग डिस्ट्रीब्यूटर है, तो हमारे पास जो आ रहा है, हमारे पास सिस्टम एंड प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग नहीं है जितने स्ट्रांग लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर के पास है. तो हमें अगर एक्सेस एक्सेस करना है, तो हमारा खुद का जो एक्सपीरियंस है उसको ही उसके बिहाफ पर ही हम बहुत सारे डिसीजन लेते हैं. We don't have that kind of very strong. We are developing, we are implementing, trying to implement, हम सिस्टम प्रोसेस इंप्लीमेंट करें, लेकिन जितने अच्छे सिस्टम प्रोसेस बड़ी कंपनियों के पास हैं, लाइक इंग्राम, रेडिंगटन, सेरेक्स, इनके पास हैं, अभी वो इमर्जिंग डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है. तो वो उस एरिया में उनको काम करना पड़ेगा. दूसरा है कि उन जो लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने आपके अगेंस्ट जो है इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उनको एक से पैसेज मिल जाता है कि इनकेस अगर आप कोई पार्टनर डिफॉल्ट करता है तो इंश्योरेंस से वो कवर हो जाते हैं. तो जो इमर्जिंग डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, तो दीज आर द चैलेंजेस. एंड रेस्ट आई सी देयर इज नॉट अ मेजर चैलेंज. आज के डेट में काफी हद तक जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वो सिंक हो गया है, और काफी हद तक स्ट्रीमलाइन हो गया है, जो पहले नहीं था. गुड थिंग ड्यू टू द जीएसटी, आप किसी भी लोकेशन में कहीं पर भी बिल कर सकते हो पैन इंडिया. आपको बहुत सारे लोकेशन पे वेयर हाउस रखने की जरूरत नहीं है. हर सिटी में आपको ऑफिस की जरूरत नहीं है. आप होम ऑफिस में या स्मॉल ऑफिस में या बिजनेस सेंटर में भी 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग बैठा करके ऑफिस चला सकते हो. एंड करंटली आई सी सो मेनी हमारे ओईएम्स थे या जिनके बड़े बड़े लार्ज ऑफिस थे पहले, आई सॉ कि इवन नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी दे स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द बिजनेस सेंटर इन अदर प्लेसेस. तो ये एडवांटेज आज हुआ है, जो एडवांटेज डिस्ट्रीब्यूशन में पहले नहीं था. दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग. Okay. So, what advice would you offer to newcomers in the IT distribution market to help them establish a successful presence? सबसे पहला है कि दे शुड बी, उनका डिसिप्लिन होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द लोगों का डिसिप्लिन नहीं है. दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन सिस्टम एंड प्रोसेसेस. दूसरा, वो अपनी कंपनी की मॉनिटरिंग, वो अपनी क्वार्टरली बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं. दे मस्ट मेक द क्वार्टरली बैलेंस शीट. उनको अपने को खुद को मेजरमेंट करना चाहिए कि देयर कंपनी शुड बी प्रॉफिटेबल ईच एंड एवरी क्वार्टर, एंड प्रॉफिट शुड बी लार्जर देन द बिफोर. सिमिलरली आपकी जो टॉप लाइन है वो भी पहले से ज्यादा होनी चाहिए हर क्वार्टर में. अगर आप उस मेजरमेंट को और उस डिसिप्लिन को कंटिन्यूअसली फोकस करते हो, तो आई एम श्योर कि बिजनेस विल ग्रो 100%. बिजनेस में ना ग्रो होने का कोई स्कोप नहीं है. दैट्स माय. Yeah, true. So, what future do you see for the IT distribution industry over the next 3 years, especially regarding technological innovations and go-to-market strategy? यस दिव्या, जितना माय मेरा अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस के मामले में, लास्ट 3 डिकेड इज साइजेबल टाइम. जो ट्रेड है, डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली अ ट्रेड. उसको नाम आप डिस्ट्रीब्यूशन दे दीजिए. एंड ट्रेड आज से 10,000 ईयर पहले भी था, 1,000 ईयर पहले भी था, 100 ईयर पहले भी था, और फ्यूचर में भी आज भी और फ्यूचर में भी रहेगा. ट्रेड का एक तरीका बदल जाएगा. मे बी ऑर्डर जो है, जो मैनुअली आते थे वो ऑनलाइन आएंगे. पेमेंट जो मे बी पहले कैश आती थी, चेक आती थी, वो मे बी ऑनलाइन मिलेंगी आपको. प्रोडक्ट में भी आपको जो है वो डिलीवरी का, जहां आप अपना ट्रक भेजते थे या अपना लोग भेजते थे, मे बी वो आप कोरियर से भेजो या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू भेजो. तो ये कंटिन्यूअस रहेगा. डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा. एज इंडियन इकोनॉमी जो पहले जस्ट $400 मिलियन की थी 1994 में, और आज वो $4 ट्रिलियन की है. एंड वी लुक फॉरवर्ड कि 2030 तक इट विल बी मूविंग टू $6 to $7 ट्रिलियन. तो जब ये $1 ट्रिलियन जा रही है, और आईटी जो आईटी है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में या फ्यूचर में हमेशा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी बजटिंग, जो भी कंपनी बजटिंग करती है, आज अपने बजट का 6 to 7% वो आईटी में खर्च कर रही है. कोई भी बिल्डिंग बन रहा है, होटल बन रहा है, रेस्टोरेंट बन रही है, बार बन रही है, या कोई फैक्ट्री बन रही है, कोई प्लांट लग रहा है, कोई आर एंड डी का सेटअप बन रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बन रहा है, हर जगह पे एटलीस्ट 10% जो बजट आज की डेट में आईटी के लिए है. तो अगर इंडियन इकोनॉमी अगर $7 ट्रिलियन की होती है, तो आप मान के चलिए कि 10% जो मनी है वो हमेशा आईटी पे खर्च होना है. तो जब उसने खर्च होना है, तो नेचुरली कहीं ना कहीं कोई तो उसको फुलफिल करेगा ना.
तो जो True. वॉट एवर द डिस्ट्रीब्यूटर आर दियर वो सब सस्टेन करेंगे। बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो लोग ज्यादा ग्रो करेंगे जिनके सिस्टम होंगे, प्रोसेस होंगे, जो अपने आप को स्केल अप कर पाएंगे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, चाहे उसमें एआई है, चाहे अदर टेक्नोलॉजीज हैं, कैसे उसमें डाटा डाटा साइंस अपने डाटा का कैसे यूज करेंगे। मोर एवर जो प्रमोटर्स हैं वो अपने आप को कितना अपग्रेड कर सकते हैं, अपने माइंड सेट को कितना अपग्रेड कर सकते हैं, उसके बिहाफ पर ही उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। True, true. So you have shared a really insightful thoughts around it. So I have a particular one question. Like, if you were to host a dinner party with any three famous figures, like dead or alive, who would you invite and what would you serve? Oh, great. Yeah. See, if possible, I will love to call my father, who is no more there, if it's there. And apart from that, one more important person which I met one to one, that is Azim Premji, Mm. whom I really love to meet face to face अगर ऐसा possible हो. And there are few more friends. Mm. Three people का आपने नाम बोला है, तो third people apart from father, then Premji. One was my favorite was Ratan Tata. He is no more there. But there are few iconic peoples Mm. like Sunil Bharti Mittal. So I met him on one also. So these are the people. If I get opportunity, I will love to do dinner with them. And apart from that, there are friends like Rajesh Agarwal, who's the owner of Macromax, whom I can call anytime. They can come. I have a friend, Mr. Susil Thantia. I can call him basically. We have a mentor, Mr. Vijay Mehra, and Mm. whom I love to do dinner every time. I can call them every time and meet with them. They are the friends. They helped us so many times. And like Saket Kapoorji and even Alokji, Unistal, all these people helped us a lot in our growth. So we all, I love to call them these people for the dinner instantly. Names should be there. And so, what would you serve them? I will serve them whatever they want. They want red wine. I will serve them red wine. They want veg, non-veg, whatever they like, basically. And preferably, if you ask me, basically, I love to serve this small single malt, small 30 ml of single malt to the people. Champagne is again not a bad thing. And about the food, frankly speaking, veg or non-veg, whatever they like, I think I prefer to do. And more, I believe that there should be more salads and more things because I'm myself a very health conscious guy. I want my friends in my ecosystem. There should be also always a health conscious people. Nice, nice. Thank you so much for joining us today. I hope you guys found that discussion insightful and inspiring. Stay tuned for more exciting conversations with Maybe. industry leaders. And remember to follow us for the latest updates and insight. Don't forget to subscribe and stay tuned for more insightful discussions on our channel. See you in our next episode.